Hello, good morning, everyone. Welcome to today's class. Good morning, ma'am. Okay, Good morning, while ma'am. everyone is joining in, make sure that you all have clicked on the Remind Me button and share it with your friends who all are preparing for the same exam. You know that we conduct these free live classes Monday to Friday at 9 a.m. So if anyone is new here, don't forget to click on the Remind Me button and please turn on all the notifications. Okay? Today's class will cover a topic of paraphrasing, which is an essential skill to score band 7 and above in your writing and in your speaking. So by the end of this session, you will be able to use better vocabulary. You will be able to avoid that repetition. You will replace the common words with some synonyms and you can create stronger IELTS answer. Okay? Okay, first question for you all. What is the another word for important? Quickly type in your chat box. Yes, Sana. Yes, very good. Next, essential, vital. Yes. More answers. Another important word. The synonym. Crucial, significant. Yes. Okay. Yes. What about others? Sakshi, Ankit, Asad. Quick. Okay. Another important word for big. Another important word for big. Quick. Large. Yes. And big के लिए huge. Yes. More answers. Quick. Problem. Another word is problem. Yes. Issue. Challenge. This is exactly what paraphrasing means in IELTS. जब आप express करते हो अपने same idea को using different words without changing the meaning. अगर आप एक ही वर्ड को रिपीट करते रहोगे या कुछ वर्ड्स को आप रिपीट करते रहोगे आपकी वोकैबुलरी का स्कोर लिमिटेड हो जाएगा. बट इफ यू कैन नेचुरली यूज सिनोनिम्स तब आप अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हो जो एक क्राइटेरिया है आपके आइल्स स्कोर का. एम आई राइट? लेक्सिकल रिसोर्स आप सबको पता है ना? वी हैव ऑलरेडी डन दैट. सो पैराफ्रेजिंग क्यों मैटर करती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है पैराफ्रेजिंग? लेट्स लुक एट अ सेंटेंस. Many students think English is important. Can we improve this sentence? Yes or no? Yes, ma'am. Can we improve it? Yes, ma'am. How? You have to help me. A Because large today I'm not proportion able to of speak much. Yes. Who will help me out? large proportion of students believe that English is essential Yes. essential skill. So let's do it with synonyms first. Many students. Can I write students instead of students? Can I write learners? Yes, ma'am. Will it be correct? Yes, ma'am. Yes. Many learners. Instead of think, can I write believe? Yes, ma'am.
स्टूडेंट्स की जगह स्कॉलर्स भी लिख सकते हैं। Just wait, Asad. Many learners believe English is important. अब important के लिए आपने मुझे क्या क्या another words दिए थे? I saw in Essential. chat box. The first word was essential. So can I write essential here? Yes, ma'am. So we improved. Same meaning है. Better vocabulary है. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is what we want in IELTS. Same vocabulary. I mean same meaning but a better vocabulary. अब राइटिंग के एग्जाम्पल में जब हमारे पास टास्क 2 का कोई भी क्वेश्चन आता है वी ऑलवेज हैव टू पैराफ्रेज इट. सुप्रीत आपने लिखा है लर्निंग इंग्लिश इज मस्ट फॉर एवरीवन. इट्स लाइक आप मैंडेटरी कर रहे हो. यू ओके लेट मी कम टू द पॉइंट. जब भी हम पैराफ्रेजिंग करते हैं द मीनिंग शुड बी सेम. वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. आप वोकैबुलरी ऐड करोगे उसमें बट मीनिंग नहीं करोगे. राइटिंग टास्क 2 का क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन. Some people think that technology has improved our lives. We have to paraphrase. Paraphrase करेंगे synonyms के साथ सिर्फ. Yes, Yes. help me out. How we'll do paraphrase? Certain individuals Yes, open that certain technological advancements have individuals. Yes. open that Think that. You mentioned opine that. Yes. technological advancement have improved Yes. So we can our write life. opine that. We can write believe that. आगे टेक्नोलॉजी को कैसे चेंज करेंगे? Technological advancement Yes. or modern technology. Yes. Correct. Technological advancement has improved our lives. Has Yes. improved our lives. Yes, enhancement यूज कर सकते हैं. So has improved को Okay. मैं has enhanced लिख दूं. Yes, ma'am. Enhance. लाइफ को मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ लिख सकती हूँ. Yes, ma'am. Yes. तो मैंने अपने टास्क 2 के क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दिया. राइट? Yes, ma'am. So can you notice some changes? Yes, Ali Nasir, you notice some changes? Vibha? Vibha? Vibha Sharma, Amit, Sukhpreet. You notice some changes? No. What changes have you seen in this sentence? Please let me know. क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर जब हमने इस सेंटेंस को चेंज करा, पैराफ्रेज करा? First is some people think technology improved life. Some people को certain individuals में change कर दिया. Think को believe, opine में change कर दिया. टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, improve को enhance में और life को quality of life. So आज हम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं. We will be practicing this together कि कैसे आप एक सिनोनिम को फाइंड कर सकते हो.
We will learn 3 ways to paraphrase in IELTS. Basically, there are more, but I will tell you 3 ways जिससे आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो आइल्स में. सबसे पहली पैराफ्रेजिंग होती है सिनोनिम रिप्लेसमेंट से, जो अभी हमने स्टार्ट कर ली है. सेकंड होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करके, जो हम अपकमिंग सेशन में करने वाले हैं. थर्ड होती है वर्ड फॉर्म को चेंज करके, जो अगेन हम अपकमिंग सेशंस में करेंगे. आज हमने स्टार्ट करा है विद सिनोनिम रिप्लेसमेंट, सबसे फास्टेस्ट तरीका टू अचीव बैंड 7+. ये बैंड 7+ लाने की टेक्निक है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग का सिर्फ और सिर्फ मतलब सिनोनिम्स को चेंज करना नहीं है. ये एक तरीका है पैराफ्रेजिंग करने का. सम स्टूडेंट्स, उन्हें सिर्फ यही पता है कि पैराफ्रेजिंग का मतलब है सिनोनिम्स को ऐड कर लो. राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू नोज कि पैराफ्रेजिंग सिर्फ सिनोनिम्स के थ्रू होती है? रेज योर हैंड क्विकली. How many of you know paraphrasing can be done only with changing the synonyms? Previously, I believe like that only. Sana, Elora, yes. What about others? किस किस को अभी तक यही पता है कि सिनोनिम? कुछ हो गया था. How many of you thinks कि पैराफ्रेजिंग सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स को चेंज करने से होती है? तो अब 2 और तरीके भी हैं, which is called as changing the sentence structure and word form. So you have to be available in the upcoming sessions to learn about कि कैसे हम sentence structure change करके भी synonyms paraphrasing कर सकते हैं, और word form को change करके भी हम कैसे paraphrasing कर सकते हैं. तो आज करेंगे हम synonym replacement के साथ. रियल पैराफ्रेजिंग इन तीनों को मिलाकर होती है. दैट मीन्स जब हम वर्ड्स भी चेंज करते हैं, हम स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं. बट आज का हमारा टॉपिक सिनोनिम रिप्लेसमेंट का है. सिनोनिम रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जब आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को चेंज करते हो, रिप्लेस करते हो. जैसे अभी हमने करा एक एग्जाम्पल में, हमने अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऑल्टरनेटिव्स मतलब डिफरेंट वर्ड्स के साथ चेंज करा, लेकिन उनका मीनिंग क्या था? सेम. क्या हमने यहां पर मीनिंग को चेंज करा इस क्वेश्चन में? नो मैम. नो. तो सिनोनिम रिप्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि जब आप सेम मीनिंग रखोगे, अगर आपने अपने मीनिंग को डेविएट किया, दैट मीन्स आपने वहां पर पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया. आप वोकैबुलरी को चेंज करो बट मीनिंग क्या रहेगा? सेम. आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, दैट मीन्स आप सिनोनिम्स ढूंढो, बट मीनिंग रहेगा सेम. ये क्यों जरूरी है आइल्स में? क्यों आपको बार बार कहा जाता है पैराफ्रेजिंग सीखो, पैराफ्रेजिंग सीखो? ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को कॉपी ना करो, चाहे वो आपका स्पीकिंग हो या आपका राइटिंग हो. इससे आपकी वाइडर वोकैबुलरी रेंज एग्जामिनर को दिखती है, और जिससे आपका लेक्सिकल स्कोर इंक्रीज होता है, आपका एक स्ट्रॉन्गर इंट्रोडक्शन होता है. अब एक चीज और, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स के बेसिस पे 7 स्कोर करना चाहे, वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. ही कैन ओनली टारगेट 5 और 6, क्योंकि आप कितने सिनोनिम्स को लर्न कर लोगे. बट अगर आप सिनोनिम के साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी काम करते हो, दैट मीन्स और टेक्निक्स जो मैं आपको अपकमिंग सेशन में कराने वाली हूं, वो भी अगर आप अप्लाई करते हो, यू ऑल कैन टारगेट बैंड 7+ इन योर पैराफ्रेजिंग स्किल्स. अब
कुछ रूल्स हैं सिनोनिम रिप्लेसमेंट के, जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स पढ़े कुछ स्टूडेंट के, दे ट्राई टू चेंज द मीनिंग। आपको मीनिंग चेंज नहीं करना। रूल नंबर 1 इज वोकैबुलरी को चेंज करो, मीनिंग को चेंज नहीं करो। लेट्स डू इट। हेल्प मी आउट विद दिस। Many people enjoy mobile phones. कैसे चेंज करेंगे? चेक द मैम a large number of individuals. हाँ, महम एक बार पैराफ्रेज स्टेटमेंट को चेक करो। Yes ma'am, correct है. करेक्ट है महम? Pass. Okay, Yes raise ma'am. your hands who feel that this statement is correct. Quick. जिनको लगता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, रेज योर हैंड क्विकली। एलोरा, Yes, ma'am. इज द सेंटेंस करेक्ट? Yes, ma'am. अली, आपको भी लगता है करेक्ट है? ओके। किसको लगता है कि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है? मैम वो रेगुलर आया इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए मेरे को हम्म। incorrect लग रहा है। ट्राई टू रीड, दोनों का मतलब क्या है, मुझे मतलब बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मैम मैम फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि बहुत सारे लोग मोबाइल इस्तेमाल करने में लुत्फानंदोज होते हैं। और अबू, यू सेकंड नीड का टू है, बी लिटिल लाउड। अबू, लिटिल लाउड। यस मैम एक्चुअली ना आज मेरा ना है वो माइक काम नहीं कर रहा, तो मैं कोशिश कर दूँ इसे रिप्लेस करके फिर मैं बताता हूँ। ओके। हम्म। तो जो मैम दूसरा वर्ड है, दूसरा जो दिख रहा है इसमें लिखा है बहुत सारे लोग मोबाइल फोन करते हैं रेगुलरली, यानी कि मुसलसल। ओके, इसमें इंजॉय वाला तो मेन जो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है। आपने पढ़ा पहले सेंटेंस में क्या लिखा है? मेनी पीपल इंजॉय मोबाइल फोन। इंजॉय करना मतलब they like to use or इंजॉय करना मीन्स दे लाइक समथिंग, है ना? हम कोई चीज yes, इंजॉय करते हैं, दैट मीन्स वी आर लाइकिंग दैट थिंग। मेनी पीपल yes, ma'am. enjoy मोबाइल फोन मीन्स पीपल लाइक मोबाइल फोन्स। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा गया है न्यूमरस इंडिविजुअल्स यूज मोबाइल फोन रेगुलरली। क्या यूज और इंजॉय सिनोनिम्स है? यूज No. और इंजॉय क्या एक दूसरे के सिनोनिम है? पहली लाइन बता रही है कि बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं मोबाइल फोन यूज करना। दे इंजॉय मोबाइल फोन्स, दे लाइक मोबाइल फोन्स। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन क्या कह रही है? न्यूमरस इंडिविजुअल्स यूज मोबाइल फोन रेगुलरली। So here use means they are operating mobile phones. क्या ये सही पैराफ्रेजिंग है? क्या ये सही पैराफ्रेजिंग है? क्या यहाँ पर मीनिंग चेंज हुआ या नहीं? Ma'am, regularly. सो मेरे को रेगुलरली समझ में मीन्स नहीं चेंज हुआ ऐसा लग रहा है। रोज फोन को यूज करना, टू ऑपरेट, टू डू समथिंग। बट यहां तो एंजॉय का मतलब तो टू लाइक समथिंग होता है ना।
मैम यूज रेगुलरली भी एंजॉय में क्या रहता है? नो, आप अपना कोई सेंटेंस क्रिएट करो, ट्राई टू यूज एंजॉय एंड यूज बोथ. Use is as per the needs, enjoy is as per their comfort and liking. क्या enjoy और use एक सिनोनिम्स है? No. अगर मैं यहां से रेगुलरली भी हटा दूं, मैं सिर्फ बोलूं मेनी पीपल यूज मोबाइल फोन एवरी डे, मेनी पीपल enjoy मोबाइल फोन एवरी डे, क्या ये सेम है? चलो और सिंपल करते हैं आपके लिए. क्या enjoy करना और यूज करना सेम मीनिंग है? No, ma'am. Then they have different meanings. Yes, यूज ma'am. करना इज लाइक यू आर यूटिलाइजिंग, यू आर ऑपरेटिंग दैट थिंग, और enjoy का मतलब होता है लाइकिंग. सो दोनों के डिफरेंट मीनिंग है. यू कैन नॉट यूज देम इन प्लेस ऑफ अनदर. ये ऑल्टरनेटिव इसका नहीं है. यहां पे फोकस आपका चेंज हो गया, यूज से लाइकिंग पे चला गया. यहां फोकस क्या था कि मोबाइल फोन यूज किया जा रहा है, यूज करने से आप लाइकिंग पर आ गए हो. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यूज मीन्स व्हाट यू डू एंड एंजॉय मीन्स हाउ यू फील. सो अगर आप रिप्लेस कर रहे हो यूज को विद एंजॉय, तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा. ये करेक्ट पैराफ्रेजिंग नहीं है. सो कभी भी ऐसा सिनोनिम नहीं चूज करना बिकॉज वो बहुत फैंसी साउंड करे. यू हैव टू कीप द ओरिजिनल मीनिंग. दिस इज रॉन्ग. गेटिंग दिस? लग रहा था ना कि सिंपल है, सेम मीनिंग Yes. है, बट इट इज Yes, नॉट. ma'am. सेम नहीं है. वहां एंजॉय है, यहाँ यूज है. ये बहुत छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स हैं जो आपकी पैराफ्रेजिंग को गलत कर देते हैं. सेकेंड इज you have to use natural synonyms. I'm giving you an example. Check the paraphrasing here. Children should attend school. Kids must depart to academy. Children should attend school. Kids must depart to academy. ठीक है पैराफ्रेजिंग एकदम? No. No, ma'am. नहीं है? No. क्यों? Yes. क्योंकि मैम एकेडमिक की रही है, स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? एक्चुअली मैम हम बेसिक थीम से ही हट गए. हमारा जो बेसिक फर्स्ट फिक्रे का जो मीनिंग था उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया. इस वजह से इसकी और उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं हो सकती. एकेडमिक इंस्टीट्यूट आएगा स्कूल की जगह. Children should attend school. Kids must depart to academy. क्या प्रॉब्लम है? Both are same because academy itself comes under the same, right? बट क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकेंड. क्या एकेडमी और स्कूल सेम है? यस. क्या एकेडमी और स्कूल सेम है? सो द स्टूडेंट ma'am. हैज ट्राई टू चेंज द सिनोनिम. और हम डिपार्ट किसके लिए यूज करते हैं? क्या हम स्कूल जाने के लिए? क्या कभी हमारे मम्मा पापा ने या किसी ने हमसे बोला दैट यू हैव टू डिपार्ट टू स्कूल? No. Not going to school, we use this
this word depart. It is usually used for trains, flights, Right. or Yes. even when you leave a place, but not going to school. है ना? There is a minor loophole, but So yes, correct. again, this is a wrong word used. That means the student has not used the synonym in a natural way. This is very strange. Awkward paraphrasing कहते हैं. And academy, not as school. This is not the same Yes. context. But if there is a academic, schools are like that, it is. School is not always academy. क्या school Yes, ma'am. always academy है? No. Right? So you should always look for a good synonym जो accurate, natural, appropriate होना चाहिए context के according. अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा रोबोटिक या डिक्शनरी वर्ड फाइंड करा है, डोंट यूज इट. आपकी सारी पैराफ्रेजिंग गलत हो जाए. ओके. नाउ Yes, ma'am. third thing is don't replace every word. You have to remember these 3 rules कि आप जब vocabulary को change करोगे, meaning को change नहीं करोगे. यहाँ पर आपने meaning को change करा. Second, you have to use natural synonyms. कोई भी ऐसा synonym आप नहीं use करोगे dictionary fancy words का. Third, don't try to replace every word. अगर आपको लगता है if it's possible करो, नहीं है मत करो. Now one student, what he has done. Oh, please. This was the statement, and every word got replaced because of paraphrasing. कैसा लग रहा है ये? Yes. What do you think about this paraphrasing? कैसी है दोनों paraphrasing? Sorry. अच्छी है? Band 7 आ गया? Yes, ma'am. Yes. मिलेगा पक्का इस वाले में Band 7? Ma'am. Yes, I want your answers quickly. क्या इसमें Band 7 मिलेगा? क्या लगता है? नो मैम, No, मैम ये रोबोट साउंड कर रहा है. Yes, ma'am. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है, अननेसेसरी फॉर्मल बना दिया है इसे बहुत ज्यादा. Okay, so these things we need to take care, right? Numerous humans. We normally say people, we normally say individuals. Humans. Yes, ma'am. Why? हर वर्ड को रिप्लेस करना is not important. टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी नहीं है. टेक्नोलॉजी नहीं है. क्यों? टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी तो है. वो टेक्नोलॉजी अलग चीज है और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है. नो, बस वो थोड़ा सा स्पेसिफिक डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि वो नहीं है. टेक्नोलॉजी को डिजिटल टूल भी बोल सकते हैं. बट आप फिर स्पेसिफिक हो जाते हो, इसलिए ये ब्रॉडर टर्म है टेक्नोलॉजी. इसीलिए आई सेड डोंट ट्राई टू रिप्लेस एवरीथिंग. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एवरी वर्ड को रिप्लेस करना है जिससे आपका सेंटेंस अननेचुरल साउंड करे. अभी यहाँ सोसाइटी को सिविलाइजेशन, हाउ कैन लग रहा है ये नेचुरल तरीके से पैराफ्रेजिंग करी हुई है, सिनोनिम रिप्लेसमेंट करा है. डेट्रीमेंटल रिपरकशंस,
ओवर कॉम्प्लेक्स बना देना सेंटेंस को, आपको कभी भी ऐसे 7 स्कोर नहीं मिलेगा. मैम You मेरे have to, दिस लाइक yes, हाँ, yes, मैम. दिस इज मैम दिस इज लुक लाइक टू अप टू 9 बैंड. लुकिंग पे नहीं जाना मैम, सिर्फ वर्ड्स. यही तो गलती होती है ना, कि आप सिर्फ वर्ड्स देखते हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स है, कुछ अलग से वर्ड्स लिखे हैं तो बैंड 9. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप अपनी उसी वोकैबलरी, नेचुरल वोकैबलरी के थ्रू भी बैंड 7+ स्कोर कर सकते हो. अगर आप रोबोटिक बन के डिक्शनरी वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स लाओगे, इट विल नॉट लीड यू टूवर्ड्स बैंड 7 एंड अबव. आपका मेन काम है, स्टेप नंबर 1 इज आपको कंटेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? nouns, verbs, adjectives, adverbs. I am writing here. जब भी आप पैराफ्रेजिंग करोगे सिनोनिम्स के थ्रू, आप हमेशा इन वर्ड्स पे फोकस करोगे, क्योंकि मेन मीनिंग आपके सेंटेंस का इन्हीं वर्ड्स में होता है. नाउन क्या दिया है, वर्ब क्या दिया है, एडजेक्टिव क्या दिया है, एडवर्ब क्या दिया है. आपको ग्रामर वर्ड्स को इग्नोर करना है. दी हो, इज है, एम है, प्रपोजिशन है, who है, which है, no. Okay, so let's do some practice. I'm giving you a sentence. You all have to help me out. Yes. Ma'am, Yes. in this statement before you Hmm. you gave that even though he wrote about the civilization, actually that civilization and Yes. society, instead of That's society, what, even they yes. can wrote That, societal or something. But collocations he can use, but he cannot use the entire word society to civilization. yeah, that is That is totally not opposite. same. Yeah, that is not same. Yes, ma'am. So this is the wrong way to do the paraphrasing, because some students, they try to replace every word. They feel like if I'm going to replace every word, I'm going to target band 8. But no, society and civilization, though they are related, but they are not exactly the synonyms, Yes, ma'am. right? So society means if you are living together in a community, that is society. But civilization means that is basically a Developed. very developed culture. It Yes, has ma'am. history, it has technology, it has achievements, everything. So it cannot be paraphrased to that. That's a very broad and human culture. Yes, ma'am. For society, modern society, communities, public, you can use these words, but not civilization. That's a wrong usage. Now, everyone, look at the content words here. यहाँ पे content words क्या क्या है इस sentence में? Yes. Many people believe that technology has a negative effect on society. इसे करेंगे हम Ma'am, upgrade. people believe technology. People believe, yes. Technology. Then negative effect. Yes, ma'am. And then society. So these are Society. the content words. अब आप इन्हें replace करो. One by one you have to answer. कैसे change करें? Many people को क्या लिख सकते हैं? Significant contribution. Individual. Sorry, numerous? Individual. Yes, correct. Believe को क्या लिख सकते हो? Numerous individuals argue that. हाँ, argue भी लिख सकते हो. And remember, आप believe को believe भी लिख सकते हो, argue भी लिख सकते हो, think भी लिख सकते हो. Then technology. Always look for collocations. जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड करी है इनिशियल, दे नो कि हमें collocations के साथ जाना है, कोई अलग से टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढना. तो यहाँ पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी लिख सकते हैं.
ओके, बोथ आर करेक्ट. सो टेक्नोलॉजी के लिए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिख सकते हो. अब एज आई सेड, ग्रामर वर्ड्स को फोकस नहीं करना. नेगेटिव इफेक्ट की जगह क्या लिख सकते हो? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट. नेगेटिव इम्पैक्ट. हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट लिख सकते हो. और अगर मुझे नेगेटिव को भी चेंज करना है, आई कैन राइट एडवर्स इम्पैक्ट, Yes. हार्मफुल इफेक्ट, है ना, क्योंकि नेगेटिव है. सो आई कैन राइट हार्मफुल इफेक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट. ऑन सोसाइटी, अगेन ऑन पे फोकस नहीं, आप इस पे फोकस. सोसाइटी को क्या लिख सकते हो? मॉडर्न सोसाइटी और कम्युनिटी. कम्युनिटी लिख सकते हो. करेक्ट, मॉडर्न सोसाइटी. Clear? So in this way, you have to do the paraphrasing with synonym replacement. चेक करके अपने वन ऑन वन वर्ड को. अब हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना? न्यूमरस इंडिविजुअल्स argue that, believe that modern technology has a harmful effect on the public or on society or on modern society. क्या हमने मीनिंग चेंज किया? नो मैम. हमने सिर्फ कंटेंट वर्ड्स को चेंज किया. आइडिया रहा सेम, मीनिंग रहा बिल्कुल सेम. लेट्स डू वन मोर. Some people think children should do sports regularly. Content words, some people think children sports regularly. कैसे चेंज करेंगे? Some people को क्या लिख सकते हैं? Majority of people, a large number of people. So can I write certain individuals? Because we are Yes, talking ma'am. about some. Few individuals. Few individuals also, correct? Group of people, Then group of think. individuals. Think को क्या लिख सकते हैं? Believe. Believe, Argue. find, Yes. Children. Young people. Yes. Young people लिख सकते हैं. Should do sports regularly. अब do sports को be- क्या लिख सकते हैं? Should be participated in sports activity regular. Should participate in, not should be. Should participate in sports. Should be नहीं आएगा, grammatically correct होना चाहिए. Okay? Can we use student must take part? Sorry? Can we use students must take part? आप should को must कर रहे हो. Must का मतलब Okay. होता है mandatory. Should is Okay. like you are advising. तो फिर आपका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाए. Should Okay. और must सेम नहीं होते. ठीक है? Okay. So regularly को कैसे चेंज कर सकते हैं? Regularly means regular basis, Ma'am, can you consistently. कंटिन्यूसली मैडम, कंटिन्यूसली. Consistently. We call that consistently बोलते हैं उसे. डेली बेस भी बोल सकते हैं मैम. Regular basis. On a daily basis भी लिख सकते हो आप. Yes. One more. Next one. Nowadays, children spend too much time watching television. ये सारे writing task 2 के statements हैं. विभा आपने must कर दिया है dear should को. प्लीज उसे must मत करो. It should be should. Nowadays, children spend too much time watching television.
मैम nowadays इन दिस डे बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इन दिस डे। इन दीज डेज। यस मैम। और मैम टुडे भी बोल सकते हो। टिल डेज। सॉरी, सो नाउअडेज को हम क्या लिख सकते हैं? टुडे लिख सकते हैं, मॉडर्न एरा लिख सकते हैं, Ma'am, चिल्ड्रंस can we write today's lifestyle? इन टुडेज लाइफस्टाइल। नो, Just to paraphrase the sentence. नो, Okay. इतना सिंपल नाउअडेज है, उसमें टुडेज लाइफस्टाइल में क्यों पहुंच जाना है? यस, करंटली लिख सकते हो विभा, दैट्स करेक्ट। In contemporary era, in this इन contemporary. टुडेज वर्ल्ड लिख सकते हो, टुडेज Okay. लाइफस्टाइल नहीं। Okay. अपने वर्ड्स को हमेशा करेक्टली चूज करना है व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग द पैराफ्रेजिंग विद सिनोनिम्स। अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को यंग पीपल लिखो, यंगस्टर्स लिखो, चिल्ड्रन भी लिखा रहेगा तो भी एग्जामिनर वोंट माइंड। स्पेंड टू मच टाइम, स्पेंड टू मच टाइम मीन्स क्वालिटी ऑफ टाइम। टू मच टाइम इज क्वालिटी ऑफ टाइम, Excessively. एक्सेसिव टाइम, ज्यादा टाइम स्पेंड करना मतलब क्वालिटी ऑफ टाइम कैसे स्पेंड करना होता है लोरा? इट्स नॉट द सेम मीनिंग देयर। Most of the time. Most of the time, yes, or you can say excessive time. Children spend too much time means they spend excessive time, they devote excessive time, they devote considerable or dedicate too much time, not quality of time. ठीक है? मैम इट्स इन माय माइंड सो आई स्पोक। No problem, be careful, okay? Time watching television, अब watching television को कैसे चेंज कर सकते हैं? Yes, write the sentence quickly. Vibha, share your entire statement. विभा, आपने इन्वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम लिखा है, तो वर्ब इन्वेस्ट should not be used here wisely, because students, they invest time in learning new skills, not investing majority of time in that. ठीक है? तो अगर आप ये बोलना चाहते हो कि nowadays children invest majority of their time watching television, ये थोड़ा सा odd लगेगा. Invest is always used for those activities which are beneficial. But यहाँ तो एक ड्रॉबैक है ना. इन्वेस्ट टाइम मीन्स यूजुअली जब हम कोई पॉजिटिव चीज की बात करते हैं तब यूज करते हैं. ओके साक्षी, आपने थोड़ा सा सेंटेंस इन टुडेज वर्ल्ड के बाद एक्सेसिव टाइम वॉचिंग टीवी, क्या पूरा सेंटेंस बताओ. आपने स्टूडेंट वर्ड्स को ही मिस कर दिया है. आई एम राइटिंग हियर. Next one, again, one more question of writing task 2. See this. Some people believe technology makes life easier. अब we know some people को हमें कैसे change करना है? Certain individual. People believe that. How will you change this? मुझे second part of sentence change करके बताओ.
Because first part तो I know that you all can write, है ना? First part तो हम ऐसे लिख सकते हैं, certain individuals argue that technology makes life easier. इसे कैसे change करेंगे? Technology has huge impact on human life. Huge impact. यहाँ पे बोला गया लाइफ इजियर बना रही है. आप बड़ा इम्पैक्ट की बात कर रहे हो, क्या आपने मीनिंग को सेम रखा? No. Impact is used like for Impact bad can be effects, right? positive also, impact can be negative also, Sana. You have to choose your words wisely. Technology makes life easier. That means आपकी life easy हो रही है, simpler हो रही है. How will you change? मैम लाइफ कन्वीनियंट लिख सकते हैं. Sorry? मैम कन्वीनियंट. हाँ, simplifies life बोल सकते हो, improves the quality of life बोल सकते हो. देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉलोकेशन ऐड कर दो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो आपका वो भी क्या हो गया, रिप्लेस हो गया. मेक्स लाइफ इजियर है, उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो कि लाइफ सिंपलर हो रही है, लाइफ कन्वीनियंट हो रही है, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है. यू कैन यूज एनी, बट अगर आप इम्पैक्ट की बात बोलोगे देन इट इज रॉन्ग. और सिंप्लीफाइड मॉडर्न लाइफ भी बोल सकते हो. क्लियर? मीनिंग शुड बी सेम, वोकैबुलरी शुड बी एकेडमिकली करेक्ट, तभी आपके राइटिंग टास्क 2 का इंट्रोडक्शन बेटर होगा. बिकॉज ये सबसे पहली स्टेटमेंट होगी जो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में. साक्षी ने क्या लिखा है? न्यूमरस इंडिविजुअल्स थिंक दैट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. साक्षी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं होता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मेक्स लाइफ कन्वीनियंट. कुशल, आपने ट्रांसफॉर्म का यूज किया है. Yes, ma'am. Yes, understand. Modern technology has transformed people's life more convenient. Missing है यहाँ पर. देखो people's life, आपने बोला modern technology has transformed people's life, आगे कुछ missing है. More convenient, by making them more convenient and more accessible. Or either you can put a punctuation, comma लगाओ, more convenient and more accessible. ठीक है? Even I can use like as transformed the life of people. Then again, if you want to use convenient and accessible, you have to add that adjective, that verb. Yes, ma'am. Understand. ओरिन, आपने लिखा है people think that technology keeps modern life streamlined. Do you think it is a good paraphrase? When you're talking about Orin streamline, it means that you're only focusing about that efficiency. Meaning similar, nahi, not exactly the same. It's not an exact paraphrase. Makes life easier is a broader term. Whereas streamline, keeps modern life streamline agar bolte ho, that means you're talking about only the efficiency, only the organization. Okay?
सो जब हम ब्रॉडर टर्म की बात करते हैं हम ब्रॉडर ही यूज करते हैं. स्ट्रीमलाइन शुड it's a good vocab, but you should always use when you're talking about easy to efficient things. Okay, Oren? Otherwise, this will not be correct. A person with the name of iPad, certain individuals argue that modern technology makes life more manageable. आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक्स, मेक नहीं, इट शुड बी मेक्स. ठीक है, टेक्नोलॉजी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, नॉट मेक. Ma'am, then instead of the make, then modern technology has made people's life more convenient and accessible. That should also be, yeah. Because, but the thing is, meaning is Okay. little close to make like life easier, life more manageable, life more easier. It is close to that. Yes. Okay. Okay. So remember one thing, guys. जब भी हम synonyms को replace करेंगे, we will be finding the accurate alternatives कि हमारा meaning same रहे. Right? हमें meanings को change नहीं करना. अगर मीनिंग चेंज होगा द एंटायर स्टेटमेंट विल चेंज. दैट मीन्स आपने पैराफ्रेजिंग गलत करी है. क्लियर टू एवरीवन? यस प्लीज. Yes. I Yes, hope ma'am. you got an idea that how you have to replace the synonyms. In the upcoming session, we will be focusing on changing the sentence structure. जब हम पूरे सेंटेंस को ही चेंज करेंगे, कीपिंग द मीनिंग सेम. मैं जितनी भी टेक्निक्स आपको अपकमिंग सेशंस में कराने वाली हूँ, उन सब में हम मीनिंग को चेंज नहीं करेंगे, मीनिंग सेम रखेंगे. मीनिंग चेंज करना मतलब पैराफ्रेजिंग नहीं है. पैराफ्रेजिंग का मतलब ही यही होता है कि आप मीनिंग को सेम रखो. राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. So I hope that now nobody will be using the same words. कोई भी उन सेम वर्ड्स को बार बार यूज नहीं करेगा. राइट? आपको क्या करना है, आपको अपने इंट्रो को बैंड 7 पर लेकर जाना है. तो वो बैंड 7 पर कैसे जाएगा? जब आप उसमें से अपने कंटेंट वर्ड्स को रिप्लेस करो. कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना कि जो क्वेश्चन दिया है सेम आप वही कॉपी करो. नो. कोई गूगल वाले सिनोनिम्स डाल के नहीं ऐड करना. नेचुरल तरीके से एकेडमिकली आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, सिनोनिम्स को ऐड करना. राइट? गुड टू गो? So I hope you got some idea about how to change the synonym. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. मैम इसमें नहीं है, स्पीकिंग में थोड़ा आ रहा है प्रॉब्लम. मोनिल, मैंने जैसे जैसे आप राइटिंग में पैराफ्रेजिंग सीखोगे वैसे ही आप सेम चीजें अप्लाई कर सकते हो अपनी स्पीकिंग में भी. ओके. बिकॉज पैराफ्रेजिंग वहां भी इंपॉर्टेंट है. जब एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसे पैराफ्रेज करके ही बोलना है. आपको वो सेम सेंटेंस रिपीट नहीं करना. ओके? That's great, Chanpreet. बेबी कोच से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, क्यू कार्ड में मजा आ गया. दैट्स ग्रेट चनप्रीत, ये तो बहुत अच्छी बात है. फिर तो बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए. आई एम वेटिंग फॉर योर स्कोर्स देन. यस मैम, 28 या 29 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैम. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. लेट्स वेट फॉर योर स्कोर. डू लेट अस नो. यस मैम, डेफिनेटली. Okay, I'm giving you some statements in the chat box. I want you all to paraphrase it.
ओके ओके मैम। हाँ, ये तनु ने देता है लिंक। इट्स योर होम असाइनमेंट. पेड है ये फ्री है? पढ़ू दे कुछ फीचर इन द पेड Ali, please mute yourself. You have to try the paraphrasing for these statements. These are all questions from task 2. Check the chat box. Yes. You want me to give more? I can give more. It's you only who has to practice. And start generating the ideas also whenever you think about these statements. Okay, I'm giving you some more. First thing is you have to identify the content words. Content words पे focus करना है. Yes, I have given more 20. Please check. Without changing the meaning, you have to change the paraphrasing. Yes. So these are 20 statements. You have to do paraphrasing today. Only synonym replacement कल हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के थ्रू. जैसे मैंने आपको बताया देयर आर अदर वेज टू डू द पैराफ्रेजिंग जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है इन योर टास्क 2 एंड इवन इन योर स्पीकिंग ऑल्सो. So any new student who has joined us today, please click on the remind me button for all the next classes. Notifications को on करके रखो. जब भी 9 o'clock क्लास स्टार्ट होगी, we have a live class every day, Monday to Friday, 9 o'clock. Share it with your friends who all are preparing for the same exam. Any doubt, any query, anything you would like to ask, please let me know. मैम उसमें वीजा सर्विस अभी चली नहीं ना. I'll ask the team, Ankit. Definitely, I'm going to ask them. Okay? और मैम मैं ये पूछ रहा था मैम 2 दिन से क्लास नहीं थी ना मैम. मैं बार बार चेक कर रहा था और मुझे लगा शायद कोई You can टेक्निकल see इशू आ my रहा है. voice. मैम सेम ईयर मैम. Yes, exactly. It's been 4 days. I was not well. I was under the weather. So then even today morning, I was feeling little low, but then I was like, my students will be waiting for me that why class was not there. मैं तो मैम सारा दिन चेक कर रहा था कहीं. Very soon, I'm going to create a WhatsApp community for you all so that we can join over there as well. मैं तो मैम सारा दिन चेक कर रहा था बार बार खोल के. मैं कहा शायद बाद में ना लग जाए बाद में ना लग Was जाए. not. The class was not there on Monday and Tuesday. Okay. Yes, Sana, the visa services is for everyone. Thank you so much. Yes. और कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो प्लीज लेट मी नो. नो मैम बस थैंक यू. Sure. So you all will be practicing today. Yes, Sana, you can watch all the classes in the application. एप्लीकेशन में क्लासेस में जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हो लास्ट लिसनिंग मॉड्यूल वाली. कंप्यूटर बेस की प्रैक्टिस आप एप्लीकेशन से कर सकते हो. रीडिंग के टेस्ट भी हैं, लिसनिंग के टेस्ट भी हैं, सारा कंप्यूटर बेस्ड है.
जब आप रीडिंग टेस्ट ओपन करते हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड. आप कंप्यूटर बेस्ड क्लिक कर सकते हो. Yes, paper base is about to end. Some cities are giving you paper based, otherwise it is completely computer based. Okay? Yes. मैम वो आफ्टर जुलाई मैंने न्यूज देखा था कि आफ्टर जुलाई दे आर चेंजिंग ओनली रिटन टेस्ट दे यू कैन डू इन हाँ, पेपर सिर्फ बेस्ड. राइटिंग में ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज इट इज टोटल यस. कंप्यूटर बेस्ड. कुछ सिटीज में हो सकता है अभी भी अवेलेबल हो, यू हैव टू चेक योर लोकेशन. अदरवाइज इट इज कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड. हम लोग कितने दिन पहले टेक्स्ट बुक करना चाहिए? डेट मिल जाती है? अभी तो ज्यादा डेट्स हैं, Ankit, एवरीडे पेपर है. once you're fully prepared, only then book your test. Otherwise, do not waste the money. है ना? जब आपको लगता है कि आपका कंसिस्टेंटली स्कोर 7 आ रहा है, तभी आप अपना एग्जाम बुक करो. ओके. What's your name? User, you are a new student. What's your name? Where are you from? गुमनाम है मैम इसका नाम. Amit. Amit, I saw your name. मैंने आपको बोला भी था Amit, but then you were not speaking. Okay, Amit, आपका स्कोर आपको 5.5 चाहिए. एकेडमिक के लिए या जीटी के लिए? एकेडमिक आइल्स या जनरल? ठीक है अमित, you joined us on time. Thank you so much Oren, thank you so much. अमित, आपने बिल्कुल सही टाइम पे क्लास ज्वाइन करी है. अभी आपके सिर्फ 2-3 सेशंस मिस हुए हैं राइटिंग के. वो आप लाइव क्लासेस में जाकर चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग्स वहां पर अवेलेबल है. आज जो आपने सेशन अटेंड करा, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिनोनिम्स को हम रिप्लेस कैसे करेंगे. और आगे के जो सेशंस है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि उसमें हम एंटायर स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर चेंज करने वाले हैं, कीपिंग द मीनिंग सेम. तो आपने बेस से स्टार्ट करना है राइटिंग का. अभी टास्क 2 स्टार्ट के लिए मैंने पहले बेसिक्स आपको कराने हैं, वो सारे बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे. सो प्लीज डू नॉट मिस आउट एनी क्लास. ठीक है? कल क्लास होगी थर्सडे. फ्राइडे इज रक्षाबंधन, एज यू नो इट्स एन ऑफिशियल हॉलीडे, तो फ्राइडे क्लास नहीं होगी. देन इट विल बी ऑन द मंडे. मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock आपकी क्लासेस होती है. आप एप्लीकेशन में जाके रिमाइंड मी के बटन पे सारी क्लासेस देख सकते हो, कब कब कौन सी क्लास है. यस चंद्रप्रीत. मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बेबी कोड को यूज़ कर रहा था मैम लास्ट ईयर से, और उसके पहले भी मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उस समय मैंने बेबी कोड के बारे में मुझे नहीं पता था. और मैम मैंने 5.5 बैंड अचीव किए थे. एंड अभी इस बार मैम मैम मेरा रीडिंग पार्ट भी छूट गया था मैम, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता था. और इस बार मैम मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि मैंने पूरा टेस्ट मैम मैंने लगाया है, और लोगों का मैम छूट गया था. लिसनिंग पार्ट भी जो पार्ट 4 होता है वो छूट गया था. लेकिन मैम मेरा बहुत अच्छे से हुआ. बेबी कोड के मैंने लास्ट वीक बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, जो रियल टाइम टेस्ट की वजह से मैम मेरे को बहुत फायदा हुआ मैम. ये मैं कहना चाहता था मैम. That's great Chanpreet. Please share your reviews on the application. यस मैम, थैंक यू सो मच Do मैम. record your review and share it on the application. Thank you so Yes, ma'am. much. Okay then, see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Keep on practicing for the synonym replacement. ठीक है मैम. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, Take ma'am. care of your Bye, health Bye. as well. Thank you so Bye-bye. much. ओके मैम, थैंक यू मैम सो मच.